Hello everyone, welcome to Kanishta Coders. In today's live session, we are going to discuss the most important Viva questions that are asked in Java practical exams. So it will be a roundup and you will be able to learn lots and lots of things related to Java. So let's begin. The first question that is always asked is who developed Java? The answer is James Gosling. Okay, just remember his name. James Gosling developed Java. And it is also asked that Java is an what type of language? You can say it's an object-oriented programming language because it follows the concept of OOPS. Okay, so in Java, what things are basically done as compared to C programming language? In C programming language, the concentration is more on functions, okay? We make functions in them, but in a Java programming language, we are basically concerned more on classes, okay? We make classes, and these classes are then used to form objects, and these classes, does these classes contain? These classes contain various functions in them. Okay, let us make a very small program of Java and try to understand everything. Let's take class and let us give the class name as capital A. Okay, and then inside that I'm going to write public static void main, and then I'm going to write string, and then the word we're going to write is args. This is one thing, string args, just remember this. And then inside it I'm going to write system dot out dot print ln, and then in the quotes I'm going to write hello like this, and then semicolon, and I close this main function and I then close this class. So this is the very small and basic program of Java which I've written. Just try to understand. If you want to give the comments in Java, you have to use double slash, okay, like this, and you can write the command basic program of Java. And what are comments? They are non-executable part. This type of comment which I have made over here is a single line comment which I have made over here. Okay, now what you have made over here is a class. Okay, now class is actually a blueprint. A class has two things. A class, if someone asks you what does class has two things. It has uh, data members data members and the second thing that class has is member functions. member फंक्शंस, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा मेंबर्स और दूसरे आपके पास होते हैं मेंबर फंक्शंस. ओके, तो एक क्लास के अंदर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक और बात बता देता हूँ, डेटा मेंबर्स किसे कहते हैं? हम लोग वेरिएबल्स को कहते हैं. जैसे कि आपके पास इंटीजर a इज़ इक्वल टू 5 है, इंटीजर b इज़ इक्वल टू 10 है और आपने इंटीजर c इज़ इक्वल टू a प्लस b किया. तो ये सारे क्या हैं? आपके डेटा मेंबर्स. ये सारे डेटा मेंबर्स हैं और हमारे पास कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे. मैं जो आगे आपको बताऊंगा कि फंक्शंस होते क्या है. तो ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक पूरी क्लास बनती है. तो अब आप देखिए कि क्लास, देखिए इसके अंदर क्लास एक कीवर्ड है और ये जो ए लिखा है मैंने, ये क्या है? नेम ऑफ द क्लास. नेम ऑफ द क्लास. ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक क्लास के नाम को स्टार्ट करते हैं उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है बेटा, वो ऑलवेज क्या होता है? कैपिटल में होता है. ठीक है, उसके बाद देखिए ये ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, इनको हम ओपनिंग ब्रेसेस भी कहते हैं. अब आप देखिए इस क्लास के अंदर एक बार इसका एक और, अगर टीचर आपसे ये पूछते हैं कि एक एक जावा का प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है,
तो आप उसका आंसर बहुत क्लियरली बताएंगे कि मेन से स्टार्ट होता है। जहाँ पर मेन फंक्शन बना होता है जावा का प्रोग्राम, वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप ये देखिए इसके अंदर पब्लिक से पहले मैंने सबसे पहले पब्लिक लिखा है। पब्लिक क्या है इसके अंदर? एक्सेस, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर होता है इसे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, तीन तरह की एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड। ये भी आपसे बहुत बारी पूछा जा सकता है कि कितने तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब पब्लिक का मतलब इसके अंदर ये होता है कि ये मेथड अनप्रोटेक्टेड है और ये सारी क्लासेस, जितनी भी बाकी सारी क्लासेस हैं, इसको एक्सेस कर सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक ओपन है, ये एक ओपन मेथड हम लोगों ने बनाया है जिसको बाकी सारी क्लासेस जो हो पाएंगी वो यूज़ करेंगी। तो पब्लिक मीन्स जितनी भी बाकी क्लासेस बनेंगी वो सारी इस मेथड को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि मेन मेथड है, इस पर तो कॉल हमेशा जानी ही जानी है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैटिक। टीचर इसका मीनिंग तो बहुत बारी पूछते हैं। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये वो मेथड है पूरी क्लास के अंदर जो मेथड बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी चल सकता है। कैन रन, ठीक है ना, ये जो फंक्शन होगा जिसके अंदर, ये फंक्शन का नाम क्या है यहाँ? मेन। वॉइड मतलब होता है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यूज, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नाम मैंने वॉइड रखा है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपको आगे समझाऊंगा कि वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा उसका मतलब क्या होता है, तो ये मैं आगे समझाऊंगा। तो ये वॉइड का मतलब होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, मेन इस फंक्शन का नाम है। और जो मैं स्टैटिक का मीनिंग आपको समझा रहा था कि एक बात का ध्यान रखना कि ये इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए नो ऑब्जेक्ट, नो नीड टू मेक, नो नीड टू मेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि आगे जाके आप कॉन्सेप्ट समझोगे कि इसके अंदर, जावा के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लासेस के थ्रू सारे काम होते हैं हमारे। तो जहाँ पर भी हम लोग स्टैटिक वर्ड रख देते हैं, वो जो फंक्शन, जो वो फंक्शन है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, इतना सा जो फंक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रनिंग प्रोग्राम है। यहाँ से इतना से लेके यहाँ तक ये रन कर जाएगा प्रोग्राम, आप इतना सा लिखेंगे तो। ठीक है, तो ये अपने आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट के बिना चल जाता है अगर आपने स्टैटिक लिखा हो तो। आगे समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी थोड़ा सा दिमाग में रखना अभी। तो और या फिर आप जब मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना एक बारी। इसके अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो हमारा एक तरीके का डेटा टाइप है। स्ट्रिंग हमारा एक तरीके का डेटा टाइप है। डेटा टाइप जैसे मैंने आपको बताया था, इंटीज, आपको पता भी होगा कि आपने बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होंगी, जैसे इंटीजर हमारे पास क्या डेटा टाइप होता है, उसका स्ट्रिंग होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। कोई पूछ ले कि स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे ए लिखा है या बी लिखा है, ये सारे क्या है, हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे MANIT लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। और एक और बात बताता हूँ, आपने जो यहाँ पे देखो हेलो लिखा है ना, जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं ना, हम लोग हमेशा उन्हें डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं, ये बात का ध्यान रखना, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। तो ये स्ट्रिंग तरह का एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट मतलब कि आर्ग्यूमेंट एक एक उसने नाम दिया हुआ है उन्होंने, स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे का। ठीक है ना, इसका नाम दे रखा है उन्होंने, वो क्या है, आर्ग्स। तो ये हम लोग पैरामीटर उसके अंदर पास करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो फंक्शन के अंदर हम वैल्यू देते हैं उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये जो पब्लिक स्ट्रिंग ये आपकी बेसिकली तब यूज़ होती है जब आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देनी हो। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स देनी हो। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे अगर आपने इसको प्रोग्राम को रन किया और उस समय कोई इनपुट देना चाहते हो तो वो कमांड लाइन पे, कमांड लाइन क्या होती है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट को हम लोग कमांड लाइन कहते हैं ना, तो वहाँ पे जो हम वैल्यू देना चाहते हैं वो किस तरह की होती है, स्ट्रिंग तरह की होती है। ठीक है, और ये अगर आपने जावा में कुछ भी प्रिंट कराना है, इफ़ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा, तो आप क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम। और एक बात का ध्यान रखना है, एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंटलन, और आपने क्या लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हेलो। एक का एस कैपिटल होता है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस कैपिटल होता है, आप इस बात का ध्यान रखिए, और लास्ट में हर स्टेटमेंट की सेमी कॉलन आती है जो स्टेटमेंट पूरी हो जाती है। ये तो एक फंक्शन है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग, तो आप बता रहे हो इस फंक्शन के अंदर ये चीज़ है, तो फंक्शन के एंड में सेमी कॉलन नहीं आता। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक थे, मैं आपको और भी बेसिक्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करता हूँ। So I hope you enjoyed this video. Keep liking us and just press the bell icon. You'll get all the notifications. I'll try to make more videos as soon as possible. Thank you.